Today is going to be a very interesting day, and we're going to talk about love and what it is to be loved and what it is to love. I just wrote call it a शायरी. मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं शायर तो नहीं पर फिर भी कुछ अल्फाज निकल जाते हैं, कभी दिल की खामोशी तो कभी इसकी धड़कन, तो कभी इसकी बेचैनी, तो कभी इसकी राहत, कभी इसकी कसक अल्फाज बन के जुबान पर आ ही जाती है। गहरा रिश्ता रहा है मेरे दिल और मेरे जुबान के बीच, गहरी दोस्ती है इनकी मेरे दिल और जुबान के बीच। कमबख्तों ने जहन को बहुत तकलीफ दिया मिलके, दोनों की जो जोड़ी होती है, दोस्ती होती है, वो जहन को मेरे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तो एनीवेज अर्ज़ किया है तो इट गोज़ लाइक दिस। ये दिलों के कारोबार हैं, इसको तिजारत ना समझो। ये दिलों के कारोबार हैं, इसको तिजारत ना समझो। दुनिया के तराजू का यहाँ क्या काम, ये मोहब्बत का जहां है और यहाँ मंजिल फना फिल इश्क है। Now, you see, once we try to understand the lines here, there's a lot to say. The first line is, ये दिलों का कारोबार है, इसको तिजारत ना समझो. When you are in love, it's the bonding between two hearts. दिलों का बंधन जो होता है, कारोबार, बंधन, लेन देन दिलों का जो जुड़ते हैं दिल, इसको वो बिजनेस वाला लेन देन मत समझो. तिजारत इज बिजनेस. सो ये दिलों के कारोबार हैं, इनको तिजारत ना समझो. तिजारत इज बिजनेस. दुनिया के तराजू का यहाँ क्या काम. What does this mean? दुनिया के तराजू मतलब the तराजू implies here your traditions, the world judging you. तुमको जज करना तराजू में कि तुम सही हो, तुम गलत हो, या फिर तुम बहुत गलत हो. जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो. राइट, ये तराजू होता है दुनिया का. ट्रेडिशंस होते हैं, जो चला आ रहा है वही चलेगा. हम जो कह रहे हैं हमारी बात मानो, तुम्हारी दिल की बात ना मानो. सो दैट इज व्हाट तराजू इज. योर dogmas, your convictions that you have about your ideas that have been given to you by your forefathers. Now, it's not that all the traditions are bad and all, no, not that. But then there are a few traditions that haven't evolved. There are places, even today in this world, where women are not given their place, rightful place. They are treated like maids. They are treated badly. They are beaten. They are abused. Right? There are such places, and there are such people. And there are places where money is more important than anything else. Success is more important. Now, I'm not saying that money is not important. Money is definitely important. I love money. That's a different thing. But then, it has its own place. What we do is we try to replace, वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम खुश नहीं रहोगी क्योंकि वो ठीक नहीं है, वो ये यहाँ का है, उसका बैकग्राउंड ये है, वो नहीं करता. ठीक है, ऑल दिस हैपन्स बिकॉज एक इंटेंशन होता है दुनिया का तराजू में तोलने का, एक इंटेंशन होता है. लेकिन जब दिलों का कारोबार चलने लगता है तो ये तिजारत नहीं है भाई साहब. दुनिया के तराजू का यहाँ क्या काम, ये मोहब्बत का जहां है. जब तुम मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत का जहां है, और यहाँ की मंजिल
यानी कि मोहब्बत जब शुरू होती है तो उसकी मंजिल एक ही होती है और उसको कहते हैं फना फिल इश्क। दैट मीन्स टू से मोहब्बत में अपने आप को भूल जाना, अपने ईगो को भूल जाना, अपने ईगो को जला देना, एक दूसरे में समा जाना, जहाँ अल्फाजों की ज़रूरत कम पड़ती है, जहाँ खामोशियाँ बात करती हैं, जहाँ पर चोट किसी को लगता है लेकिन दर्द कोई और महसूस करता है, जहाँ पर you completely surrender yourself, you love that person. And loving, there's a ridiculous notion when we talk about love. People say love is about, love needs to be unconditional, right? That's what people say. Love needs to be unconditional. How many of you believe that love needs to be unconditional? Do you believe that? Think about it. Do you believe in true love? Do you believe in authentic love? Well, let me tell you. If you believe that, then there's a long way for you to go to understand love. Because you cannot describe love. Love is love. There's nothing called as unconditional love, because when you say unconditional love, that also implies that there is something called as conditional love. So there are no conditions, or love is not unconditional, neither it is conditional. Love is not true, neither it is false. Love is neither authentic, neither, what's the opposite of authentic, Yeah, unauthentic, inauthentic, whatever. So, you see, that is what love is. Most of us, we are made to believe that, now see, Aman Baba says rules must be there. No, rules, yeah, you can have rules. That is what, dunya ke tarazu mein mat tolo. The moment you say rules, दुनिया का तराजू रूल्स लेकर आ गए। ये मोहब्बत का जहां है, यहाँ की मंजिल फना फिल इश्क है। इश्क में बर्बाद होना, इसका मतलब क्या है? अपने रूल्स को बर्बाद कर देना, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। वो भले ही हमको फिजिकल सेपरेशन हो जाए, वो कहीं और चले जाए, तुम कहीं और चले जाओ, लेकिन फिजिकल सेपरेशन होने से भी तुम अंदर से उससे जुड़े रहते हो। उसको फना होना बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने मोहब्बत की तो साथ रहना ही, ऐसा नहीं है। That's another notion people have. Because once you love someone, you love. That's all. That's about it. There is nothing else, nothing more, nothing less. That's all. Finished. Khalas. Gone. You love, right? क्योंकि क्या होता है कि जब आप बोलते हो कि नहीं उसको साथ रहना ही है, तो प्यार, लव जिसको बोलते हैं, मोहब्बत जिसको बोलते हैं, वो तब्दील हो जाती है हासिल करने के एक जुनून में। प्यार तब्दील, it transforms into something else. It becomes egoistic. That is the reason why people, who claim to be in love, and when they don't get that person, they try to harm that person. तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी. And all this influences from, those movies. तो मेरी हो किरण, तो सिर्फ मेरी रहोगी तुम. हाँ, ये ऐसी बातें कर करके, गाने भी ऐसे ऐसे लिख करके, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण. That is not love at all. That is something else. That is बेहुदगी है, जाहिलपन है और बेख्याली है. यानी कि in a negative sense. You're not using your conscience at all, right? Did you understand that obsession where a person wants to possess someone? So like I said, possess, भूत हो क्या? मैं possess कर लूँगा, भूत हो. नहीं, ऐसा नहीं होता है. It is just that के we tend to get confused between love, because there can be love in friendship. There can be love. Love is just not about, let me tell you, it's just not about two young people, being in love, or two, the romantic love. It can be any kind of love. It can be love between friends, right? So obsession is not love. It is a disease.
trying to possess someone. It's a disease. That's not love. Not at all. It's simple. फना फिल इश्क मतलब तबाह हो जाना इश्क में. तबाह कौन हो रहा है, बर्बाद कौन हो रहा है. That is what you need to understand. Yes, how does anger or let's say sarcastic tone affect your intimate relationship? That's a good question, Aman. दो चीज़ें होती हैं अपने अंदर, ठीक है. ये एक वो होता है जिसको कहते हैं माइंड, समझ गए, जहन इंसान का माइंड, ठीक है. And there is something else. You have this thing called the mind, and it consists of, it's made of your thoughts, all right? And it helps you interpret things. It helps you give meaning to what happens in your life, all right? The prefrontal cortex of the brain, that is what makes you a human. Now, let me tell you something. At a very shallow level, it affects a lot, okay? Even I get affected, all right? Now, how it affects at a shallow level? But when you understand the deep level of human nature, or rather a human being, okay, it'll never affect you. You will always bounce back. You might get affected, but for a few seconds, but then for some time, it's going to be momentary. You're not going to carry it like a burden, like a baggage, because a lot of people, intimate relationship, marriage, it becomes a baggage they carry. Okay, 10 साल तक वो कोई हादसा नहीं भूलते, 15 साल तक वो कोई जो हुआ था वो नहीं भूलते. Now listen to this very carefully. So prefrontal cortex. Now there is something else. Not many people are aware of this. Now you have something, a power in you. It is called the power of being an observer. Okay, you may want to write this down. This is deep stuff. You are the observer of your thoughts. You are not your thoughts. What does that mean? Let's say, for example, when you're sitting in a balcony, right? You look at people outside. Vehicles आ रहे हैं, vehicles जा रहे हैं, कोई honk मार रहा है, कोई ये कर रहा है, right? लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं. तो आप balcony में बैठे हो. तो जो balcony में बैठा है वो observer है. And all those people out there, वो जो गाड़ियों में जा रहे हैं and all that, वो thoughts हैं तुम्हारे. वो thoughts हैं. लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझते. बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो थॉट्स हैं तुम्हारे माइंड के अंदर वही तुम हो, वो तुम नहीं हो. इसलिए लोग sarcastic टोन एक रिलेशनशिप में कोई लेता है एकदम से. हाँ, क्योंकि बचपन से हमको ये बातें सिखाई नहीं गई, तो एक इमीडिएट एक रिएक्शन आता है कि डोंट गेट sarcastic विथ मी, और वो झगड़े में तब्दील हो जाता है. तब्दील मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है. या फिर कोई गुस्से में बात किया तो तुम बोलते हो कि टोन डाउन, ओके. और तुम भी शायद गुस्से में बात करते हो, झगड़ा करते हो. लेकिन जब तुम ये समझ जाओगे, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज दिस इवेंट जहाँ पर एक इंसान ने तुम्हारे ऊपर मतलब गुस्सा किया, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि वो इंसान अपने हिसाब से दुनिया में चलता है और वो गुस्सा करता है, वो अपने दिमाग से चल रहा है, तुम्हारे दिमाग से नहीं. एंड तुम उस गुस्से को प्रोसेस कर रहे हो अपने दिमाग से, अपने थॉट्स से. और जब जैसे तुम रेस्पॉन्ड करते हो, जैसे तुमने रेस्पॉन्ड किया उसको, राइट? अगर से तुमको बचपन से सिखाया गया है कि गुस्से को गुस्से से रेस्पॉन्ड करो, तो तुम गुस्से को गुस्से से ही रेस्पॉन्ड करोगे. बचपन से सिखाया गया कि कोई गुस्सा करता है तो ये लगा देना झापड़, दांत झड़ जाने चाहिए कुत्ते के, राइट? ऐसे भी लोग हैं तो लगा देते हैं, मेरे से वैसे कोई बात नहीं करता है करके. और अगर से बचपन से सिखाया गया है कि कोई गुस्सा करता है तो रिश्ता तोड़ दो, बात छोड़ दो, तो तुम रिश्ता तोड़ दोगे. लेकिन खैर वो तो बचपन की बातें हैं, बड़े तो होना है, राइट? यू नीड टू बिकम, यू नीड टू बी एन अवेयर इंडिविजुअल, जहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इंटरप्रिटेशन है आपके थॉट का, वो जो इवेंट का कि सामने वाले ने गुस्सा किया, वो इंटरप्रिटेशन भी एक थॉट पैटर्न है. और आप वो थॉट पैटर्न नहीं हो, आप वो ऑब्जर्वर हो जो वो थॉट पैटर्न को देख रहा है. अगर से वो थॉट पैटर्न आपसे बोलता है कि आप गुस्सा करो, तो वो ऑब्जर्वर, यू नीड टू देन यू नीड टू डिसाइड.
What are the other options available? Will I give room to this person? Or can I say that in an assertive way to this person? कि देखो ऐसा गुस्सा करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, समझाओगे, एक assertive तरीके से हैंडल करोगे. That you will know only when you understand the fact that you are the observer of your thoughts. You're not your thoughts. So don't get worked up, man. वो गुस्सा करता है, ठीक है, करने दो. अब मोहब्बत की है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी झेल लेंगे, as long as it does not become psychotic, as long as it does not become violent, right? Then it's okay. थोड़ा बहुत, थोड़े लोगों को चिढ़ रहता है और थोड़े लोग सोए नहीं रहते हैं बेचारे, स्ट्रेस में रहते हैं, खाए नहीं रहते सीधे से, कोई हार्मोन्स नीचे ऊपर होता रहता है अपने अंदर, तो इसलिए वो गुस्सा कर रहे हैं. तो you can just let go. You can just let go. Sir, a general question, is it true that lack of socialization can hamper our intelligence? Or just by studying books we can become intelligent? Yes, lack of socializing can affect your brain, because the brain is designed to socialize. So find your people, find your group. That doesn't mean to say that के कोई नहीं मिला इसलिए मैंने कमबख्तों से दोस्ती कर ली. Okay, you might not like it, because it's always better कि देखो, it's very simple. टाइम अपना ना, अपने से नीचे हैं उनके साथ थोड़ा टाइम बिताओ, जो अपने बराबर के हैं उनके साथ थोड़ा टाइम बिताओ, जो अपने से थोड़ा ऊंचे हैं उनके साथ थोड़ा टाइम बिताओ. लेकिन नेगेटिव लोगों के साथ टाइम मत बिताओ. अपने से नीचे ये मतलब नहीं है कि तुम जा रहे हो और ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो नेगेटिव हैं. सो इट इज़ बेटर टू बी अलोन दैन इन अ बैड कंपनी. पुरान नहीं एडवाइस है ना. सो यू कैन फॉलो दैट. डिड यू गेट दैट? सो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर ब्रेन. Socializing is a very important aspect, and you got to socialize. So like I said, coming back, before I go, I'm just reading this again. ये दिलों के कारोबार हैं, इसको तिजारत ना समझो, दुनिया के तराजू का यहाँ क्या काम, ये मोहब्बत का जहाँ है और यहाँ की मंजिल फनाफिल इश्क है. That means to say, इश्क में Fanafil ishq is you burn yourself in love. Now, burn yourself does not mean to say that you become डर का शाहरुख खान के भैया, उसके भाई को मार दिया, उसके कोई दोस्त को मार दिया पकड़ के. It does not mean violence. Fanafil ishq. Fana मतलब getting, completely destroyed. So completely getting destroyed in love means burning yourself down. Now, burning yourself does not mean self-mutilation. It means to say burning your ego down, letting go of your feelings of possession and obsessions and superiority and inferiority. That is what it means. So would you do that for yourself, for the person, whom you love? Would you do that? Would you forget your ego? Just be there with all your beingness, with your body, with your mind, with your soul. Just be there for that person. And when you make this understand to your partner, you can share this video. I'm going to post this video now. What will happen if your partner, does this? So what's the difference between ego and self-respect? Ego, simply put, इसका तो मतलब एक अलग ही वीडियो या कोर्स बनेगा इसका, अमन. लेकिन सवाल को एड्रेस करने के लिए इतना ही कहूँगा कि देखो, ego is where you feel that you are very superior compared to others, and it makes you feel that there are people who are very inferior to you. You are very important. Your thoughts are very important. Ego. Self-respect. Respect is a different thing altogether. Respect also means to say taking care of yourself. How do you show respect? जब तुम पिताजी को बोलते हो, बेटा अमन, बाबा मैं, डू यू रेस्पेक्ट योर फादर? अपने पिताजी को, अपने बाबा को बोलते हो, बाबा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ. तो इज्जत का मतलब क्या होता है? इज्जत का मतलब होता है एक्शंस में दिखाना. और एक चीज़ क्या कर सकते हो आप, यू टेक केयर ऑफ योर बाबा, राइट. उनको कुछ ज़रूरत पड़ी, कुछ बैठे हैं सोफे पर टीवी देख रहे हैं, बाबा मैं पानी लाऊं आपके लिए, बाबा मैं थोड़ा पैर दबा दूं आपके, आपको कुछ चाहिए. ख्याल रखना जब आप किसी की इज्जत करते हो, राइट. तो उनको सुनना, उनकी बात समझना,
वो अगर से कुछ गलत भी बोल दें तो गुस्सा नहीं करना, वो रूम देना कि ठीक है आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स स्टिल फाइन, आई एग्री टू डिसएग्री. ओके, नाउ व्हेन यू से सेल्फ रेस्पेक्ट, द सेम थिंग अप्लाइज टू योरसेल्फ. यानी कि यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुद का ख्याल रखना, अपने बॉडी का, अपने माइंड का, अपने सोल का, नरिश करना खुद को. और कभी कभार जब ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होते, जैसे बाबा की गाली, राइट, बाबा का धुतकार, जब पिताजी आपको धुतकारते हैं तो ये मतलब नहीं कि सडनली आप पिताजी से बोलेंगे आज से मैं आपकी इज्जत नहीं करूँगा, नो. तो ठीक वैसे ही जब खुद को जब आप एक टेंस्ड स्ट्रेस मोड में पाते हो तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में नहीं जाओगे. एकदम से जाकर 2-3 बोतल दारू पी लिया, सिगरेट पे सिगरेट, नो. अपने आप को माफ करोगे. इट्स ओके टू बी स्ट्रेस्ड, इट्स ओके टू बी टेंस्ड, इट्स लाइफ एंड इट्स फ्लीटिंग, इट्स गोइंग अवे, राइट. सो दैट इज व्हाट सेल्फ रेस्पेक्ट टू मी इज. सेल्फ रेस्पेक्ट इज सेल्फ केयर. और एक और बार मैं ये शेर अर्ज किया है मैंने, ये दिलों के कारोबार हैं, इसको तिजारत ना समझो, दुनिया के तराजू का यहाँ क्या काम, ये मोहब्बत का जहाँ है और यहाँ की मंजिल फना फिल इश्क है. सो दुनिया के तराजू का क्या काम. इट्स ऑल अबाउट द नॉर्म्स, द ट्रेडिशंस, वो हम, ये थिंकिंग, राइट. जात पात को लेकर बट जाना, अमीर गरीब की सीमा लाइन खींच देना, ये दुनिया का तराजू होता है. और ये तराजू मोहब्बत की दुनिया में नहीं रहता. से सर इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिल्ड योर रिलेशनशिप, डज इट? इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. व्हाट टेक्स इज एफर्ट टू build the relationship you have with yourself, right? The relationship that you have with yourself, that is the most important aspect of one's life. You know, David और Michelangelo के बारे में सुना होगा. David, you know, Michelangelo sculpted David's statue, one of the most beautiful statues in those days. Renaissance का पीरियड था और माइकलैंजेलो ने डेविड को तराशा, ठीक है. तो ठीक वैसे ही तुम अपने लाइफ के डेविड और माइकलैंजेलो को, खुद को तराशना है तुमको, और उसमें समय तो लगता ही है. इफ यू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स विथ योर सेल्फ, यू विल नो हाउ टू कीप हेल्दी रिलेशनशिप्स विथ अदर्स. आई बिलीव नो, नॉट नेसेसरी. विधि जरूरी नहीं है बेटा. This is also a very nice question Vidhi ने जो पूछा. If you have healthy relationship with yourself, you'll know how to keep healthy relationships with others, I believe. See, you might know how to keep, but then the dynamic here is the other person is also involved here, right? Even if that person understands what a relationship is and you know what it is and all that, evolves, grows, learns. That's why I said that is why I said I asked कि ये वीडियो शेयर करो अपने चाहने वालों के साथ, so that you know you come on one platform and see things. You can have different perspectives, but then you should be in a place where you agree to disagree and still do not lose your relationship, right? So if you have healthy relationship with yourself, you'll know how to keep healthy relationships with others, I believe. See, ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ambiguous है नेचर में भी. बिकॉज हियर यहाँ पर तुमने इफ़ यू हैव बोला है, तुमने नहीं बोला है कि आई हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ मी, राइट. तो व्हाट इज़ हेल्दी रिलेशनशिप? व्हाट डू यू मीन बाय, यू नो, हाउ डू यू नो द रिलेशनशिप दैट यू हैव विथ योरसेल्फ इज हेल्दी? हाउ डू यू नो दैट? एंड द रिलेशनशिप दैट यू आर एंटरिंग, डज दैट पर्सन इवन अंडरस्टैंड व्हाट अ हेल्दी रिलेशनशिप इज? राइट. इसलिए डू नॉट हरी अप एंड गेट इनटू रिलेशनशिप्स. डोंट हरी अप. मतलब कमिटेड मत हो जाना. अरे हम इंडियंस है रे, आम भी खरीदते हैं तो 1-2 फ्री में चूज कर ही खरीदते हैं, समझ गए, राइट. टेस्ट करके ही. खरबूजा भी लिया तो उसको थोड़ा काटो, अंदर देखूंगा मैं, टेस्ट करूंगा, राइट. कार खरीदते हैं तो ट्रायल लेते हैं. लेकिन जब एक रिश्तों की सवारी आती है
तो हम बहुत जल्दी जो नहीं कमिट करना होता है वो भी कमिट कर लेते हैं. ये don't show this urgency. So you can just sit and talk and say कि you know you can learn relationship skills together, understand, spend time and all that, and then eventually it'll happen. You know, there's this beautiful song, Frank Sinatra, Nicole Kidman ने भी शायद ये गाया था, right? I say something stupid like I love you and spoil it. So don't be in a hurry to commit. That's the whole idea. Never be in a hurry to commit. पहले समझो, पहले जानो, पहले देखो क्या है, किधर है, and then you know commit. Once you feel that yes, you're ready to you know reach that level, fana fil ishq, where you're ready to burn your egos down, where you're ready to burn your dogmas down, where you're ready to break the walls of tradition, then that's a different story altogether. Then that's called a love story. Everything else is just entertainment and time pass. Okay? So go ahead and decide how you're going to be. Yes, how much is fun important? Relationship is always about, there are ups and downs, we cry, we laugh. That's there. Aman, how much fun, how do you define fun? That is what it is. क्योंकि थोड़े लोगों को जो फन लगता है दूसरे लोगों को sarcasm लगता है, थोड़े लोगों को जो फन लगता है दूसरे लोगों को लगता है कि तुम टांग खींच रहे हो उनकी. So how you define fun is what is important. See, these are all जो तुम बोल रहे हो fun, right? It is very subjective. When you say fun, how do you define it? Does that person also find what you do as funny, or does that person get offended? Because जो तुमको जोक लगता है, आज का ज़माना ऐसा हो गया है, कोई कलाकार जोक भी बोल दे वो जोक की तरह नहीं लिया जाता. It's not fun, right? So it depends on how you connect, how you define fun together. What is fun to you might not be fun to the other person. I like this song, अभी जो मैंने सॉन्ग बोला था मुझे ये पसंद है, शायद दूसरों को पसंद नहीं आएगा, but yes, fun is definitely important. So decide what are fun activities for you. Is going on an adventure fun अपने partner के साथ? Is it fun? If a partner says yes, I love skydiving, I love river rafting, I'm an adventurous person. Okay. And even if you like it, so when you do it together, then it's fun. Okay? You're not the adventurous types. So what is fun? So you can say, okay, you go river rafting and I wait for you while I meditate. And then we do something together. The problem is हम लोग communicate नहीं कर पाते. क्या है, तुमको क्या पसंद है. ये जो रिश्ते जब शुरू होते हैं ना, तब हम लोग we tend to put our best foot forward. That's what my mom used to say. Starting में लड़का क्या बोलता है लड़की से, जब रिश्ते के शुरुआत में, right? तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे. I know I'm a very bad singer, लेकिन that is what happens, right? Starting में तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे, लेकिन बाद में तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे. तुम्हारी पसंद वो क्या है? मैं तो सोचता था तुमको रेड पसंद है, आज ही पता चला ब्लू है. राइट? सो दैट इज द रीजन व्हाई आजकल देखा गया रिश्तों में स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है. बिकॉज वी हैव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लव, and we have taken our role models. We have role models from our movies and our traditions. We give more importance to our dogmas and all these things that actually ये traditions बने थे हमको सुरक्षित करने के लिए, हमको सक्सेसफुल बनाने के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली आज ये बहुत सारे traditions ऐसे हो गए हैं जो बेड़ियाँ बन चुके हैं. It's like सोने का पिंजरा. तो वही मैं कहता हूँ कि परिंदों से प्यार है अगर तो पिंजरा खोल दो और जाओ रहने लगो उनके साथ जंगलों में.
दैट्स ये मैं आई थिंक कल रात को लिखा मैं ये लाइन, अगर से परिंदों से प्यार है तो पिंजरा खोल दो और जाओ रहने लगो उनके साथ जंगलों में. What does that mean? When you love somebody, right? अपने जो ideas, beliefs होते हैं उनके ऊपर थोपो मत. Go to their world and meet them. Okay, how to make friends or what to do when you meet someone new. ये एक टिप मैं दूंगा विधि. आई थिंक आई मेक अ कोर्स ऑन दिस. मैं बहुत दिनों से सोच रहा था एंड देन आई टुक माई माइंड ऑफ. द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू विधि एंड एवरीवन लिसनिंग व्हेन यू मीट समवन, स्माइल. पीपल डोंट. मुस्कुराने से भी शर्माते हैं. स्माइल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It shows that you're confident. Are you getting me? You know, I have this program, Focus, Confidence and Self-Discipline for Students. So मैंने 25 tips दी है confidence building के लिए. We are running a very, very special prize summer के लिए. A throwaway. आप लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि you know, because you have seen, I don't come सस्ता. My courses are quite premium. लेकिन यहाँ पर मैंने जानबूझ के I have dropped the price so that you know, students start investing. आप अपने pocket money से invest कर सकते हो. You know, that is the kind of pricing that we have for this. So firstly, coming back to your question, smile. That is what you can do. How to make friends? Go and talk to them. Say hi. Break the ice. Okay, and then like I said, there are a lot of other dynamics too. But start off with a smile. Don't get scared. स्माइल करूँगी तो वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये सब हमारी सोच है. सोचेगा तो सोचेगा, वो उसका प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी ना प्रॉब्लम है. मैं तो स्माइल करूँगी, मैं तो हंसूँगी. मैं तो पैदा हुई हूँ खुश रहने के लिए, यू नो, दोस्त बनाने के लिए, दोस्त बनने के लिए, प्यार करने के लिए, राइट, प्यार करवाने के लिए. लोग मेरे बारे में क्या सोचते, मुझे कुछ लेना देना नहीं है. क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग. छोड़ोगे इस रोग को तो तभी करोगे सुख का भोग. राइट. सो चलो फिर, व्हेन यू लव समवन सेट देम फ्री. सेट देम फ्री वापस नहीं आने वाला, भूल जाओ, छोड़ दो. व्हेन यू लव समवन सेट देम फ्री. तुम भी फ्री हो जाओ, साथ उड़ो. बोल रहा हूँ मैं, साथ उड़ो. सेट देम फ्री नहीं, छोड़ दो नहीं, फ्री नहीं. दैट पर्सन माइट स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर इन योर रिलेशनशिप इफ यू सेट दैट पर्सन फ्री. देयर आर पीपल हु डू नॉट वांट सच फ्रीडम इन अ रिलेशनशिप. वो वापस तुमको पूछेगा या पूछेगी, मैंने बोला था क्या ये फ्रीडम देने के लिए मेरे को. नो. व्हेन यू लव समवन यू फ्लाई विद देम. यू जस्ट डोंट सेट देम फ्री. जा हुर उड़ जाओ, क्या कबूतर है क्या. नहीं. ओके. सो या, नाउ लेट मी जस्ट, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू मेंटेन स्पेस बिटवीन वन पेरेंट्स एंड वन सेल्फ. सी, space between parents, it depends on how you have been brought up, and it depends on you know, the relationship you have had right from the beginning, number one. And number two, what is your take about parents? What do you think they are to you? There are two types of relationships, broadly speaking. One is the one where you know the importance of parents, so you have a very formal relationship where you just take care, jitna baat utna, okay, you're taking care, and you cannot connect with them, okay, because you are two different people. आपके पिताजी का सोचने का तरीका या फिर अपने माँ के सोचने का तरीका अलग होता है, आपका सोचने का तरीका अलग होता है. तो जब सोच नहीं मिलती है तो आप सिर्फ जितना सेवा करना है उतना सेवा करके निकल जाते हो. राइट. इट इज़ लाइक दैट. अगर ये सोच भी मिलती है और सेवा भी कर रहे हो तो आप जन्नत मिल गई आपको. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टॉप चेजिंग परफेक्शन or stop being a perfectionist? Is there a thing called as being perfect or perfectionist? It's a paradoxical answer. Perfection, we are all perfect, and at the same time there's nothing called as perfection. One last question. Now एक question में तुमने 3-4 questions पूछ लिए. How to stop chasing perfection? Just decide that you're not going to chase perfection. Just be excellent at what you do. It's all about a work in progress. रोज डेवलप होते रहते हो. एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ परफेक्ट एसी. अभी ये एसी चालू है, तो जब ये एसी शुरू हुआ बनाना तो दुनिया में किसी ने आकर नहीं बोला ये परफेक्ट एसी. नहीं, परफेक्टली आप ही के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट एवोल्यूशन होता रहता है. सो बिलीव इन कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन, ओके, एंड इट नीड्स टू बी प्रोग्रेसिव.
तो evolution is more important than perfection. You need to keep evolving. Okay, and there is something called as perfect because human beings are perfect in a sense कि जो तुम्हारी जो थिंकिंग है बचपन से जो तुम्हारे अंदर डाली गई, यू परफेक्टली मेक यूज ऑफ दैट थिंकिंग. अगर से तुम ये काइंड इंसान हो तो परफेक्टली तुम्हारा काइंडनेस बाहर निकलेगा. या आई थिंक दैट वाज लिटिल डीप जो भी मैंने बोला. आई डोंट नो इफ यू एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट आई जस्ट सेड. ओके, सो दैट्स अबाउट इट देन. So keep evolving in every area of your department. I've started writing poetry. I've started focusing towards life, relationships, energies and all that. So आपको भी all the best. चलिए मिलते हैं